Hello students, today we are going to study the second chapter. First chapter, explanation, already I have done. Second chapter is factors causing changes in the earth's surface. And as you have seen the picture here, it is the various forms of earth's surface. You must have heard the name of mountain. आपने नाम सुना होगा माउंटेन्स में एंड यू मस्ट हैव गॉन ऑल्सो देयर. आप कभी गए भी होंगे हिल स्टेशंस पे. हिल्स हैं तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं विच आर गिवन हियर इन दिस, लाइक यू कैन सी द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, then the valleys. Between two mountains there is a valley, and then the lake, you can see the lake, you can see the white patches on every mountain. These are the glaciers. It is a ice, and from here only you can see the river originating. The river is originating. This is the mouth. This is the source from where the rivers are originating. When the glaciers melt, the rivers flow on the plains. तो आपने plains भी देखा यहाँ पर. तो we all are living on the plains. हम लोग कहाँ रहते हैं? plains पे रहते हैं. और आपने देखा यहाँ पर oceans भी देख रहे हैं यहाँ पर. delta, when the rivers coming on the कोस्टल एरिया, जब कोस्टल एरिया पे रिवर्स आती हैं, देन इट डिपॉजिट्स द सेडिमेंट्स ऑन द कोस्टल एरिया एंड देन इट इज़ नोन एज अ डेल्टा. इट इज़ अ ट्रायंगल इन शेप. सो माउंटेन्स, you must have gone to Darjeeling, Shimla, Nainital on the hills for the vacation. So you can see the mountains. So we have various landform on our earth's surface, and there are many features of the land which can be divided into three categories. So the first category is the continent and the ocean. You must have heard the name of continent. आपने continents को पढ़ा है 6th class में. How many continents are there? There are 7 continents, like Asia, then the North America, South America, Africa, Australia, Europe, and the Antarctica. Then the ocean. There are 5 oceans, like the biggest is Pacific Ocean, then Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, and Antarctic Ocean. So these are there on the earth's surface, and you have already read. Then you can see the mountains also, plateaus also you have seen here, deltas also you have seen here, plains also you have seen here, valleys between two mountains you have seen here, and the hills. So there are two forces on the earth's surface. One which is operating within the earth's surface, जो ज़मीन के, धरती के नीचे से जो forces निकलती हैं from the earth crust, it is known as the internal. जैसे अंदर से आती ज़मीन के अर्थ क्रस्ट से आने वाली फोर्स को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस. एंड द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट, लाइक ऑन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ द फर्स्ट वन वी विल स्टडी इंटरनल फोर्सेस, द विद इन और इनसाइड, विद इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर. द फोर्स मीन्स, फोर्स का क्या मतलब है? पावर. फोर्स मीन्स पावर. सो दीज चेंजेस आर ऑफ 2 folds. उसके हम 2 folds को पढ़ेंगे, द लॉन्ग टर्म फोर्स एंड द शॉर्ट टर्म और द कैजुअल फोर्स. ये 2 तरीके की होती हैं. और उसके बाद हम इसको वी कैन सी the division of the internal forces. Internal forces are of 2 types.
the long term forces. Under the long term forces, the formation of mountains, plateaus and the plains. Long term मतलब it is taking a very long time or years to form. How many years? Maybe 200 million years ago the mountains has been formed, plateaus formed, plains formed. The duration of the long term is, as the name is written, long term. बहुत समय लेता है, बहुत सालों में एक माउंटेन फॉर्म होता है. So the second is part is short term forces. Means short terms, suddenly it comes. Casual means suddenly it comes and it vanishes, खत्म हो जाता है. Like the volcanic erupted and it finished, it cooled down. earthquake कब आ जाएगा? अभी दिल्ली में आया, आप देखिए तो कल परसों में. तो earthquake suddenly it comes, no one knows कि when it will come. तो it is a casual, अचानक से आने वाला और जल्दी से आने वाला और तुरंत ख़त्म हो जाने वाला. Now the long term force को now we are going to study. What is long term force? How the mountains are formed, how the earth has been formed. हमारा अर्थ पहले कैसा था, अब कैसा है. So here the long term force, this force is slow and its result comes before us after thousands of years. कितने साल के इसका रिजल्ट कब आता है? जैसे फोर्स से ये बनता है और फिर बहुत सालों के बाद इसकी हमको पता चलता है कि वो माउंटेन बन गया, वो प्लेन्स बन गया, वो प्लेन्स प्लेट्यूज बन गए. तो धीमे 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 ये बनता रहता है एंड वी डोंट नो कि हमारे धरती पे, हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं. सो नियरली कितने समय लेता है? इट इज़ नियरली 200 करोड़ ईयर्स अगो. 200 करोड़ ईयर्स पहले जो है वो अर्थ कैसा था? देयर वॉज अ कॉन्टिनेंट, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था. वो सब एक साथ सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे. ऑन द अर्थ इज़ नोन एज अ पैंजिया. क्या बोला जाता था उसको? पूरे अर्थ, पूरे कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा एक ग्लोब में सब कॉन्टिनेंट जुड़े होते थे, उसको पैंजिया बोलते थे. क्या बोलते थे? पैंजिया. अब ड्यू टू द शिफ्टिंग, धीरे धीरे जो शिफ्टिंग होने लगी ऑफ द प्लेट्स. कौन सी प्लेट्स की? खाने वाली प्लेट्स की नहीं. दिस इज़ द प्लेट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स प्लेन. जैसे पैसिफिक ओशन प्लेन, अमेरिकन ओशन, अमेरिकन प्लेट, दैट ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट. तो सारे कॉन्टिनेंट्स ये प्लेट्स कहलाते हैं. तो ये ओशन पे फ्लोट होते हैं और फिर जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वो जो है करीब आ जाते हैं या एक दूसरे को धक्का दे देते हैं फोर्स से, तो वो दूर चले जाते. क्योंकि हमारा ओशन, द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ऑन द ओशन क्रस्ट. ओशन के ऊपर हमारे सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दे ऑल आर फ्लोटिंग. सो समटाइम इट कम्स बाय द फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस. समटाइम इट कम्स क्लोजर एंड दे शिफ्टेड टू ईच अदर. सो द न्यू कॉन्टिनेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. और फिर नया हमारा जो ग्लोब वो बन के सामने आया. पहले कैसा था ये फोटो में आप देखेंगे कि now by the diagram you can see now all the continents are attached to each other. कैसे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं. देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ जुड़े हैं. एंड यू कैन सी द एनिमल्स, इट दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर. बीच में गैप नहीं है, एक आ जा सकते हैं. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ पज़ल आप घर में खेलते हैं ना टाइम पास करने के लिए. तो पज़ल को देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक
निकाल दोगे तो फिर एक साथ जुड़ जाएगा। तो पजल्स को आप तोड़ देते हो एंड देन अगेन यू असेंबल। तो पहले हमारा अर्थ जो था पैंजिया, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। और नाउ टुडेज पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब इट इज़ लाइक दिस। आप देखिए दोनों जानवर जो हैं वो एनिमल्स दूर हो गए, दे कैन नॉट नाउ मूव टू वन टू अनदर कॉन्टिनेंट, ये नहीं जा सकते क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशन आ गया, बहुत बड़ा ओशन है, इसको पार नहीं कर सकते। एंड यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका गॉन डाउन, देन यूरोप गॉन अप, देन अफ्रीका it is came down. So all these it is gone apart due to the shifting of the plates. जैसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, यूरोपियन प्लेट, एशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरह से ये प्लेट्स हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। नाउ द long term forces we have read here, and how the Pangeas were formed, and earlier the Pangea, now it is divided into many or 7 continents. Now today I am finishing my topic here, and next video we will start the folding and the faulting. So thank you student, and goodbye.